In this video, we will discuss about the resistances in parallel combination. Now, first of all, let us discuss when resistances are said to be in parallel combination. So, for that I have drawn this resistance where the current enters, that is starting point, and where the current leaves from the resistance is your end point. Now, if you see this diagram, this is your R1, R2, R3 are the three resistances. If it is connected with the battery through this key, as you close this key, the current start flowing through this wire from the positive terminal of the battery. So as the current is flowing, I let this current be I. Basically the charges are flowing, so it has three ways to go. Some charges may go this way, some charges may go this way, and some will go this way. So if you see here, from this section current is entering, from this section current is entering, from this section current is entering. So all the starting point of the resistances are connected together. Similarly, if you see, from this section the current is leaving. So all the end point of the resistances are connected together. So where all the starting point and the end point of the resistances are connected together, then this type of combination is known as parallel combination. Now I want to know first what is the current and what should be the value of the potential across each resistances. So to understand it, I have made a very simple diagram. Here the water is flowing through this one. This is a big one, main pipe, and this water is flowing through these pipes. According to their diameter, the water will flow. जितना पानी ये मेन पाइप भेजेगी आगे, उतना ही पानी इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा. अगर मैं मान लेता हूँ यहाँ पर क्यू अमाउंट ऑफ वाटर है इस बड़ी पाइप में, और Q1 है इस वन पाइप में, Q2 इसमें है और Q3 इसमें है, तो इसका मतलब ये हुआ जितना पानी इसने भेजा उतना ही डिस्ट्रीब्यूट होगा. तो कितना भेजा था? Q भेजा था. तो इसका मतलब क्या हुआ कि Q मस्ट बी इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3. सिमिलरली ये पानी इन डिस्टर्बेंस से होता हुआ, इन ऑब्स्ट्रक्शन से होता हुआ अगेन कम बैक टू हियर. सिमिलरली इस ऑब्स्ट्रक्शन को क्रॉस करने के बाद फिर वो यहाँ पर पहुँच जाएगा. इस ऑब्स्ट्रक्शन को क्रॉस करने के बाद फिर वो यहाँ पर पहुँच जाएगा. तीनों पानी Q1, Q2, Q3 मिला करके कितना अमाउंट ऑफ वाटर बनाएंगे? Q अमाउंट ऑफ वाटर बनाएंगे. एंड देन अगेन सेम अमाउंट, दैट इज Q अमाउंट ऑफ वाटर विल फ्लो थ्रू दिस मेन पाइप. अगर मैं यही सेम प्रिंसिपल यहाँ पर अप्लाई करता हूँ तो देखो, अगर इसमें I करंट फ्लो कर रहा है कि द फ्लो ऑफ चार्ज पर सेकेंड, तो अगर मान लो Q अमाउंट ऑफ चार्ज पर सेकेंड फ्लो कर रहा है, तो जितना इस मेन पाइप से आगे जाएगा उतना ही वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. अगर मैं इसमें करंट ले लेता हूँ I1, इसमें करंट ले लेता हूँ मैं I2 और इसमें करंट ले लेता हूँ मैं I3, सो इसके हिसाब से द अमाउंट ऑफ करंट, टोटल करंट मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल करंट्स. नाउ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. To understand it, again come back to this diagram. Here you can see that this motor is pumping the water. मैं मान लेता हूँ ये मोटर जो है Q अमाउंट ऑफ वाटर को पंप कर रही है, जिससे कि उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है 10 जूल. मीन्स इसमें हर एक मॉलिक्यूल की एनर्जी जो है वो 10 जूल के बराबर हो जाएगी. Each and every molecule of the water will have a kinetic energy of 10 joule. So as this Q amount of water is passed through this main pipe, and this Q amount of water is distributed among three pipes.
द अमाउंट ऑफ वाटर, जो पानी इस सेक्शन में गया, दैट इज Q1, तो हर एक मॉलिक्यूल की एनर्जी कितनी होगी, दैट इज 10 जूल। सिमिलरली इस सेक्शन में जो पानी गया उसमें भी हर एक मॉलिक्यूल की एनर्जी कितनी है, 10 जूल। एंड इस सेक्शन में जो पानी गया उसमें भी हर एक मॉलिक्यूल की एनर्जी कितनी थी, दैट इज 10 जूल। बिकॉज मेन सेक्शन पाइप में ही हर एक मॉलिक्यूल की एनर्जी कितनी है, काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 10 जूल। सो we got each and every molecules in all three sections will have a equal amount of energy. So during this process of passing the disturbance, they loses whole amount of energy. तो यहाँ पर भी लॉस कितना हो जाएगा, 10। यहाँ पर भी ये कितना लॉस कर देंगे, 10 जूल, और यहाँ पर भी 10 जूल। अगेन कम बैक टू this water with having a zero energy. Again this water or motor pump it and again the process continue. अगर यही सिचुएशन मैं यहाँ पर लेता हूँ तो you will find that this battery is pushing the charges particle with certain energy. So energy per unit charge is given by V. So मान लिया क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है और उसकी एनर्जी है V. सो ये चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया अमंग द 3 सेक्शंस। तो हर एक चार्ज की एनर्जी कितनी है, V है। तो यहाँ जो इस सेक्शन में जो चार्ज जाएंगे उनकी एनर्जी भी कितनी होगी, V ही होगी। जो इस सेक्शन में चार्ज जाएंगे उनकी एनर्जी भी कितनी होगी, V ही होगी। जो इस सेक्शन में जाएंगे उनकी एनर्जी भी कितनी होगी, V ही होगी। तो हर एक सेक्शन जब रेजिस्टेंसेस पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो हर एक सेक्शन में जो पोटेंशियल होगा दैट इज इक्वल टू V और इक्वल टू द पोटेंशियल ऑफ द बैटरी। नाउ ड्यूरिंग दिस जर्नी इट लूजेस होल ऑफ इट्स एनर्जी, यानी कि जब ये चार्जेस इस रेजिस्टेंस से पास ऑन होंगे तो अपनी सारी एनर्जी लूज कर देंगे। तो यहाँ पर लॉस कितना हो जाएगा, V का लॉस हो जाएगा। यहाँ पर भी जब पूरा क्रॉस करेंगे चार्जेस पार्टिकल, देन यहाँ पर भी लॉस कितना हो जाएगा, V का हो जाएगा। यहाँ पर भी लॉस कितना हो जाएगा, V का हो गया। सो यू कैन से दैट व्हेन द रेजिस्टेंसेस आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो पोटेंशियल ड्रॉप, ये जो पोटेंशियल ड्रॉप है हर एक रेजिस्टेंस में इज सेम, कांस्टेंट। सो द पोटेंशियल ड्रॉप across resistances in parallel combination is constant.